Dear students, in this video, I will discuss numericals of electric energy and electric power. This video consists of two parts. This is part first, and these are the some important formula related with electric power and electric energy. We will use all these formula where it is applicable. So let's start. Question is, an electric motor takes 5 ampere from 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. See this basic question. Here the current is given, that is 5 ampere, voltage that is 220 volt, and we have to find the power and the energy consumed in 2 hours. Whatever the given in question, first you have to write. This is the first step to solve numerical easily, and I will suggest you must see my video how to solve numerical easily. Very useful for you. Now, we know the formula of power, that is three formula: P is equal to VI, P is equal to I square R, and P is equal to V square upon R. Now, which formula is suitable to find out the answer of a particular numerical? Here see, I is given, V is given. If I use P is equal to I square formula, then it is not comfortable. P is equal to V square R, there is no value of R is given. Otherwise, first we will find the value of R. After that, we will use unnecessary, it is wastage of time, and the process become lengthy. So, best formula is P equal to VI. Here, V is equal to 220 volt is given, and I is equal to 5 ampere is given. 220 into 5, that is 1100 joule per second, and this joule per second is referred as watt. So your power is equal to 1100 watt. This is our first answer. And what is this meaning? The energy consumed by motor in a second is 1100 joule in a second. This amount of energy consumed by motor. Now, energy consumed in 2 hours. Now 2 hours, we will find how much second this 2 hour consists. 1 hour consists 3600, then 2 hour consists 3600 multiplied with 2. Now we will find energy consumed in 3600 multiplied with 2 seconds, that is 7200 seconds. Here energy consumed in 1 second is 1100, then energy consumed in 7200 seconds, that is multiply this to 7200, that is 2 into 3600 into 110. After multiplying this, you will get 7.92 into 10 raised to 6 joule. This is our energy consumption by your electric motor in 2 hours. Or you can also use this formula, energy is equal to P into T. Power is 1100, we already find, and time is 2 hours. The answer is 2200 watt hour. This is answer in watt hour and this is answer in joule. Both are correct. Now see another question. A torch bulb is rated 2.5 volt and 750 milliampere. Calculates its power, its resistance, and the energy consumed if the bulb lighted for 4 hours. See this 5 marks question. Here in this question, a torch bulb is used which having rating 2.5 volt and current rating 750 milliampere. एक टॉर्च है जिसके बल्ब की जो वोल्टेज है 2.5 वोल्ट का है और उसमें जो करंट सप्लाई दिया जा रहा है वो 750 मिली एम्पियर की है और उसे 4 आवर के लिए यूज किया जा रहा है. नाउ अब आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है. नाउ वी हैव टू फाइंड द पावर ऑफ दिस बल्ब, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 4 आवर्स. ये आपको फाइंड आउट करने हैं. तो ऑलरेडी एक्सप्लेन, फर्स्ट यू हैव टू राइट द गिवन वैल्यू as I already written. V is equal to 2.5 volt, I is equal to 750 milliampere. Now see, here it is in volt, not in millivolt, and here it is in milliampere.
यहाँ पे ये वोल्ट में है और ये मिली एम्पियर में, मिली वोल्ट में नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, यूनिट चेंज करना भूल जाते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अगर मैं डायरेक्टली पुट कर दूं 2.5 और 750, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो करेक्ट नहीं होगा, रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इन द सेम यूनिट। आइदर ये वोल्ट है तो इसी मिली वोल्ट में चेंज करो, और या ये अगर मिली एम्पियर में है तो इसको फिर एम्पियर में चेंज करो। एक यूनिट होनी चाहिए। तो बेटर ये रहता है कि मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लें। अब हम इसको जब मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज करेंगे, मिली मीन्स 10⁻³ तो हम इस 750 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। आफ्टर डिवाइडिंग बाई 1000 इट विल गिव 0.75 एम्पियर। नाउ we have voltage, we have current. Then which formula is suitable to find the power? P is equal to I square R? No, because R is not given. P is equal to V square upon R? No, because P is equal to V square upon R. R is also not given. Then better use P is equal to VI. Now V value is 2.5 volt and I value is 0.75. V into I आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ये आप करके देखना, मैंने करके देख रखा है, दैट इट गिव्स 1.87 अप्रॉक्स जूल पर सेकेंड। मीन्स दिस टॉर्च बल्ब यूज 1.87 जूल एनर्जी इन ए सेकेंड, इसका ये मतलब होता है। और दिस जूल पर सेकेंड ऑलरेडी एक्सप्लेन क्या कहते हैं इसको, वाट, देन 1.87 वाट। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट आवर पावर। Now, second, to calculate the resistance of a bulb, very easy from Ohm's law. V is equal to IR, we know very well. Then R is equal to V upon I, definitely. V value is 2.5 and I value we already find that given, that is 0.75. Now, after solving 250 here after decimal, 2 digits, here after decimal 1 digit, that put 0 here, 250 divided by 75. Now, after division, it will give 10/3 and that is equal to 3.33 ohm. This is our second answer. Now, you can also find by using the formula P is equal to V square upon R. That is also formula P is equal to V square upon R. But in this case, it becomes little bit lengthy. Why? Because power is given 1.87, so V square 2.5 square divided by 1.87 and that will give the value of R. Can I write in this way? R is equal to V square upon P. Again it will give the same value but become more complex because you have to do square of 2.5 after divide by 1.87. Calculation becomes also complex. So avoid this formula and use this one. Now third one, you have to find the energy consumed by the bulb in 4 hours. Means आप उस torch को 4 hour के लिए use कर रहे हो. Then for energy we have the formula E is equal to PT. Here the value of P is how much power, 1.87 watt, and the value of time is 4 hour. And 1.87 multiplied with 4, it gives 7.84 watt and time is hour, watt hour. Now if you want to find in joule, then in 1 second we already find how much energy consumed, 1.87 joule. Then in 4 hour, how much second? 4 multiplied with 3600. This is the second, total seconds, and the energy consumed in a second is 1.87 multiplied with this. Then the energy is 26928 joule. The total energy consumed in 4 hour. This is in joule, this is in watt hour. I hope clear होगा concept आपको. Next question, a current of 4 ampere flows through a 12 volt car headlight bulb for 10 minutes. How much energy transfer occurred during this time? In this question, एक आपकी कार की हेडलाइट है और उसमें जो वोल्टेज दे रखी है उस हेडलाइट की बल्ब की, दैट इज 12 वोल्ट, और उसमें करंट जो पास हो रहा है 4 एम्पियर का पास हो रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एनर्जी उसमें कितनी कंज्यूम होगी जब
आपका यूज़ किया जा रहा है 10 मिनट्स के लिए, मीन्स हेडलाइट्स जो कार की यूज़ की जा रही है 10 मिनट के लिए, तो उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन डाटा and here it is given in minutes, so you have to convert into second. 10 minutes multiplied with 60, it becomes 60 into 10, that is 600 second. Now we have to find energy. Write the formula of energy. Energy formula write according to the given data. आपको जो given data है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फार्मूला लिखना है। आपको मैंने ट्रिक्स बताई है। पावर के फॉर्मूले में टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इट गिव्स एनर्जी फॉर्मूला. So I use energy is equal to P into T, and here V and I is given, and we know that P is equal to VI. Then I substitute in place of P V into I. मैंने यहाँ P की जगह पावर की जगह V into I रख दिया. Now the formula of energy is VI into T. Also I given all formula of energy in starting, you must see. Then V is equal to 12 is given, I is equal to how much? 4 ampere is given, and time is 600 second. Multiply all these three. After multiplication, you will got 28800 joule, and that is also equal to 28.8 into 10 raised to 3 joule. Means such amount of energy consumed by the headlight when it is on for 10 minutes. जब 10 मिनट के लिए हेडलाइट ऑन की जाएगी तो 28.8 इंटू 10⁻³ जूल एनर्जी कंज्यूम की जाएगी. तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस टाइम. टाइम मीन्स 600 सेकेंड में इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी. An electric oven of 2 kilowatt power ratings operated in a domestic electric circuit that has a current rating of 5 ampere. If the supply voltage is 220 volt, what result do you expect? In this question, there is electric oven having power rating 2 kilowatt and current rating 5 ampere. आपके पास एक इलेक्ट्रिक ओवन है जैसा घर में सबके होता है, और पावर रेटिंग उसकी 2 किलोवाट दे रखी है. जैसा कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाते हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो उस पर पावर रेटिंग दी रहती है, करंट रेटिंग दी रहती है और वोल्टेज रेटिंग दी रहती है. लेकिन इसमें केवल पावर रेटिंग और करंट रेटिंग दे रखी है. तो ये ओवन है आपका 2 किलोवाट का, पावर रेटिंग करंट रेटिंग 5 एम्पियर, और कहा जा रहा है इसे 220 वोल्ट सप्लाई में कनेक्ट किया जा रहा है. तो आपके घर में 220 वोल्ट डोमेस्टिक सप्लाई होती है, 220 से 240 तक होती है. तो क्या एक्सपेक्टेशन होगी आपकी अगर आपने ऐसा कर दिया? तो देखते हैं. अगर हमने ऐसा कर दिया, इस ओवन को इससे कनेक्ट कर दिया जैसा मैंने करके दिखाया भी है आपके 3 वायर्स के थ्रू, अर्थ, लाइव और न्यूट्रल, ये आपका प्लग है, 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया मैंने ओवन. तो जब ओवन को हम कनेक्ट करेंगे तो करंट ड्रॉ करेगा इस लाइन के थ्रू, जो आपके वायर्स के थ्रू करंट ड्रॉ करेगा. तो जो ये करंट ड्रॉ करेगा, ये तो रेटिंग है, अब ड्रॉ कितना करता है करंट वो फाइंड आउट करते हैं. तो हमें फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू VI, और हमें अब फाइंड करना I. तो हम ऐसा लिख सकते हैं I इज इक्वल टू P/V लिख सकते हैं. पावर आपके पास यहाँ पे इसकी रेटिंग कितनी है 2 किलोवाट. तो 2 किलोवाट को हमें वाट में चेंज करना है. इस बात का आप क्या ध्यान रखना, मिली अगर दे रखा है तो उसको भी आपको क्या करना है, नॉर्मल यूनिट में चेंज करना है. तो आपको इसमें किलोवाट है, तो किलोवाट को आपको हमने चेंज कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1000 एंड 2000 वाट. वोल्टेज जिसमें आपने कनेक्ट किया है वो 220 वोल्ट है, 220. तो अब इसमें से जो करंट यहाँ पे इसमें जा रही है, करंट जो जा रही है, ये करंट आपकी कितनी निकल के आई, 2000 डिवाइड बाई 220, दैट इज 9.1 एम्पियर निकल के आई. और इसकी रेटिंग कितनी दी है 5 एम्पियर. मीन्स आपकी डाइट है केवल 5 चपातीस की और आपको खिलाई जा रही हैं 9 चपातीस. क्या होगा, आपका वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी. तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा. तो यहाँ वोमिटिंग नहीं, यहाँ पे कुछ हम इलेक्ट्रिक करंट के सेंस में कहेंगे. तो यहाँ पे जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो 9.1 कर रहा है, दैट इज टू मच. 9.1 एम्पियर करंट draws by oven and rating is 5 ampere. Due to this excessive current, the fuse will blow or MC will down and the circuit break.
तो इससे क्या होगा, बहुत हाई करंट, एक्सेस करंट खींचना शुरू करेगा। और जब ऐसा होता है तो हमारे घर का जो फ्यूज होता है वो ब्लोज हो जाता है, उड़ जाता है, और एमसीबी लगी होती है तो एमसीबी डाउन हो जाती है। आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट होता है तो, और सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो इन शॉर्ट वर्ड में हम कह सकते हैं अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी और घर का फ्यूज है तो वो ब्लो हो जाएगा, और अगर एमसीबी लगी वो डाउन हो जाएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। ये बोर्ड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt power consumed by it when operated on 1110 volt. Here there is a bulb and the rating of the bulb is 100 watt and voltage 220. आपके पास एक बल्ब है जो 100 वाट का है और वोल्टेज 220 वोल्ट का है, मींस आपको उसमें 220 वोल्ट से जाके उसे कनेक्ट करना है। बट कंडीशन यहाँ पे दे दी है, आपको 220 वोल्ट से नहीं कनेक्ट किया, आपने 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। जब 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया तो आपकी पावर कंजप्शन वो बल्ब कितना करेगा। जैसे कि मैंने एक बल्ब दिखा रखा है, इसकी रेटिंग 100 वाट और 220 है और इसको कनेक्ट कर दिया 110 वोल्ट से, तब ये बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, कितनी पावर ये बल्ब कंज्यूम करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। किसी भी आपके अप्लायंसेस का जो रेसिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता जब तक कि आप उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता, जब तक कि आप वो इक्विपमेंट को चेंज ना कर दो। मीन्स आप 100 वाट का बल्ब लिया है तो ये नहीं कि 100 वाट का बल्ब का रेजिस्टेंस कभी 10 ओम हो जाएगा, कभी 50 ओम हो जाएगा, कभी 60 ओम हो जाएगा, नहीं, उसका जो रेजिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा, चाहे आप उसमें वोल्टेज और करंट डिफरेंट अप्लाई कर दो। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो पहले हमने फाइंड आउट किया इसका रेजिस्टेंस इस बल्ब का कितना है, तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे कौन सा सूटेबल फॉर्मूला है आपके पास, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो P इज इक्वल टू वी आई, रेजिस्टेंस नहीं आएगा। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो यहाँ पे आई नहीं है, तो फॉर्मूला कौन सा बचा हमारे लिए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर इज 100 watt एंड V वैल्यू इज 220। इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 डाउन साइड आएगा, 0 0 कैंसिल, 22 इंटू 22, दैट विल रेजिस्टेंस वैल्यू 484 ओम। ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, मीन्स ये बल्ब का रेजिस्टेंस इतना है 484 ओम। अब ये बल्ब आप 110 वोल्ट में लगा दो तब भी रेजिस्टेंस इतना रहेगा, 50 वोल्ट में लगा दो तब भी इतना रहेगा, नो मैटर। अब हमारे पास फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन हमारे पास अब सप्लाई कितनी है, हमने इसे कनेक्ट कर दिया 110 वोल्ट में, तो V की वैल्यू क्या होगी 110, 110 वोल्ट ली, देन V स्क्वायर 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई R, द वैल्यू ऑफ R इज 424। आफ्टर डिवीजन यू विल गेट द पावर इज इक्वल टू 25 watt। what you will see 100 watt and this is 25 watt। और वोल्टेज आपने क्या कर दी थी, हाफ कर दी। जब वोल्टेज हाफ कर दी तो पावर कंजप्शन कितना हो गया, 1/4। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगर वोल्टेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि वोल्टेज हाफ हो गई तो पावर कंजप्शन क्या होगा, तो पावर कंजप्शन बच्चे लगा देते हैं वो भी हाफ हो जाएगी, नहीं, पावर कंजप्शन हो जाएगा 1/4। यहाँ पर आप देखें 100 वाट था, यहाँ कितना आ गया 25 वाट। तो पावर, इस बात का ध्यान रखना है, वोल्टेज बिकम हाफ देन पावर कंजप्शन बिकम 1/4।